Hello everyone, welcome back to my channel Study with Mass. Today let us continue the next part of our NEET preparation. So most important and most repeated questions for the preparation of NEET 2024 biology. Okay, let us begin the session. So question number 31, companion cells are closely associated with dash. So first you should know what does companion cells means. Okay, so companion cells are associated with, actually they are coming in, for example another type of question they may ask you, transport of food material in higher plant takes place. ठीक है, तो food material transportation takes place in which part of the plant? Phloem. That you know very well, है ना. तो water transportation takes place in xylem. But here they asked specifically. Okay, so the answer is sieve element. See, sieve elements are a specialized cell structure, okay, which helps in conduction of the sugar, and they associated with the phloem. Which part? Sieve elements associated with the phloem, and each companion cell is associated with the sieve elements. Hope this is clear. ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर. द मास्ट सेल सेक्रेट द फॉलोइंग सब्सटेंस. सो मास्ट सेल, so these are the immune cells, okay, and they are associated with tissues and alongside of the blood vessels. ठीक है, सबकी बॉडी में होते हैं मास्ट सेल्स, either they are present associated with the tissues or blood vessels. इनका काम क्या है बेटा? they secrete some kind of substances. So many substances they secrete, that only they have asked. So following substance which they secrete. So heparin, histamine and serotonin, actually all the three are secreted by mast cells. So what is the help of secretion of these substances? Why? Because it helps to fight with the infection और allergic reaction. तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि histamine helps in which one? Okay, fighting with the infection and allergic reaction. ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, let us move to the next question. See here related to frog. Next question. Actually frog के basis पे आपके बहुत सारे questions देखने को मिलेंगे in the NEET examination. So here the question is, in frog deoxygenated blood received by. आपको पता है oxygenated deoxygenated blood is received by किससे? हार्ट से रिसीव होते हैं. तो हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो डीऑक्सीजनेटेड रिसीव्ड बाय द हार्ट, लेटर इट विल बी लाइक ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होके उसको ब्लड वेजल्स में भेज दिया जाता है. दिस प्रोसेस और द फंक्शन ऑफ हार्ट. सो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है किसके द्वारा यहाँ पे रिसीव हो रहा है. तो साइनस वेनोसस रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फ्रॉग. इन फ्रॉग ये याद रखना है आपको. एंड आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग हार्ट एंड इन द ह्यूमन हार्ट. सो फ्रॉग इज हैविंग 3 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, और हम लोगों का हार्ट क्या है? 4 चेम्बर्ड. सो ये होता है आपका डिफरेंस. आपको ये भी याद रखना है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 34, रीनल पोर्टल वेन कैरीज ब्लड टू. रीनल पोर्टल वेन जो होता है वो ब्लड कहाँ कैरी कर रहा है? इट कैरीज ब्लड टू किडनीज. ओके, फ्रॉम लोअर पार्ट से, लोअर पार्ट से और फ्रॉम द लिम्ब से इट कैरीज ब्लड टू द किडनीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. देखो बेटा फिर से फ्रॉग पे आ रहा है रिपीटेड क्वेश्चन. इन फ्रॉग आरबीसीज आर red blood cells, okay, nucleated and biconvex. ये फ्रॉग में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उन सेल में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लिएटेड दे आर. ओके, बट नॉर्मली हम लोगों का जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. क्यों? वाई? बिकॉज वी नीड मोर ऑक्सीजन. फ्रॉग में क्वालिटी होती है, इट कैन रेस्पिरेट अंडर वाटर एज वेल एज ऑन अर्थ एज वेल. ओके, जमीन पे एंड पानी में दोनों जगह पे फ्रॉग की कैपेबिलिटी होती है कि इट कैन रेस्पिरेट, लेकिन ह्यूमन बीइंग का ऐसा नहीं होता है. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें रेड ब्लड सेल में स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हमारा न्यूक्लिएटेड नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीसीज ऑफ फ्रॉग एंड विच वन? ह्यूमन बीइंग. ओके,
36 क्वेश्चन नंबर, C4 प्लांट डिफर फ्रॉम C3 प्लांट्स इन रिस्पेक्ट टू। सो यहाँ पे सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट द CO2 मॉलिक्यूल इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, डिफर पूछा गया है, इसके बहुत सारे डिफर है, C3 एंड C4 प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या है इन दोनों का मतलब, C3 प्लांट्स विच परफॉर्म अ डार्क रिएक्शन थ्रू द केल्विन साइकिल, ओके, एंड C4 परफॉर्म थ्रू द हैशटैग्स का साइकिल। बस ये दो ही डिफरेंस है यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ C4 प्लांट जो होता है ये थोड़ा सा लेस होता है कंपेयर टू C3 प्लांट। अगर यहाँ पे इसके बदले में कोई और ऑप्शन दिया जाएगा तो यू नीड टू नो कि सम अदर डिफरेंसेस ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose odd one respect to the bacterial disease in the animal, anthrax, mastitis, poliorum एंड रानीखेत डिसीज। एक्चुअली रानीखेत यहाँ पे ऑड वन हो रहा है क्योंकि आपको पता है ये सब होते हैं बैक्टीरियल डिसीज। ओके, बैक्टीरियल एंड ए नहीं होता। रानीखेत डिसीज इज अ वायरल डिसीज, ए वायरल डिसीज होता है। आपको ऐसे वाले बहुत सारे आएंगे तो डिसीजेस के बारे में आपको जानकारी रहना जरूरी है कि कौन सा वाला वायरल है, कौन सा वाला बैक्टीरियल डिसीज है। सो दिस इज आल्सो रानीखेत डिसीज इज आल्सो, ये किस पे अफेक्ट कर रहा है, ये ज़्यादातर बर्ड्स पे अफेक्ट करता है, लाइक चिकन पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। यहाँ पे दिस इज आल्सो नोन एज न्यू कैस्टल डिसीज भी कहते हैं इसको। रानीखेत डिसीज इज आल्सो नोन एज न्यू कैस्टल डिसीज। ओके, सो अफेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग चिकन्स। एवियन पैरामैक्सो वायरस टाइप 1 से ये आ रहा है, वायरस डिसीज इज वायरल, और APMV1 इज द कॉज फॉर रानीखेत डिसीज। Okay, let us move to the question number 38. Which one of the following is an example of mixed or heterocrine gland? Heterocrine gland, ठीक है। Which one of the following is an example? तो mixed रह रहे हैं। हेटेरोक्रीन ग्लैंड का मतलब होता है मिक्स्ड होते हैं। एंडोक्रीन एंड एंडोक्रीन और जो आपका एक्सोक्रीन होते हैं दोनों वहाँ पे मिले हुए रहते हैं, दोनों का काम वो कर रहा है। सच ग्लैंड इज स्पेशली पैंक्रियास होते हैं यहाँ पे, जो कि बोथ एक्सोक्रीन भी होते हैं एंडोक्रीन भी होते हैं। ओके, दे आर नोन एज हेटेरोक्रीन। हेटेरोक्रीन इन द सेंस बोथ एक्सोक्रीन एंडोक्रीन। तो सो एक ऐसे एक्सोक्रीन एंडोक्रीन होते हैं। लेट मी टेल यू, पैंक्रियास सिक्रेट इंसुलिन टू द ब्लड विच इज एन एंडोक्रीन फंक्शन। ब्लड में इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, सेक्रेट कर रहा है पैंक्रिया। दिस इज एन एंडोक्रीन फंक्शन एंड अगेन इट रिलीजेस एंजाइम टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दिस इज एन एक्सोक्रीन फंक्शन. That's why your pancreas are known as heterocrines. Hope this is clear. Let us move to the last two questions. Which one of the following type of synovial joint allows metacarpal of thumb to move freely more or less in all direction? देखो बेटा, अपना थंब जो हो रहा है इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, जो कि आपका फिंगर नहीं कर पाता है। ऐसे कर सकते हैं हम थंब को, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, बट वी कांट डू विथ अदर फिंगर्स। तो इसका जो स्पेशल जॉइंट होता है वो कौन सा वाला जॉइंट है? दिस इज द क्वेश्चन. सो दिस इज अ सैडल जॉइंट. एक्चुअली दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट. ओके, स्पेशली इट इज प्रेजेंट इन द थंब. थंब के रिलेटेड ही इसको ज्यादातर पूछा जाता है, और इट इज आल्सो प्रेजेंट इन थोरैक्स, मिडल ईयर एंड हील्स. ओके, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं सैडल जॉइंट्स. So let us move to the last question of this session. In which meromyosin molecule LMM represents? Okay, LMM का मतलब क्या होता है? LMM stands for light meromyosin. Light meromyosin. Okay, तो ये कहाँ पे हो रहे हैं? This is represents tail. Okay, टेल और बैकबोन पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल LMM रिप्रेजेंट करता है. आइदर टेल और द बैक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. बैक पोर्शन, बैकबोन पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट मेरोमायोसिन रिप्रेजेंट कर रहा है. होप आपको आज के इस सेशन के 10 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं. तो बने रहिए अगले वीडियो में नए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए स्टडी करते रहना एंड बाय बाय.